Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. I'm Sia. So today what are we going to do is we are going to start with a new topic of our first chapter of geography class 10, that is resources and development. So the name of our new topic is conservation of resources. In our previous class we did that how resources are depleting and how the indiscriminate exploitation of resources have divided society into rich and poor and have created many global ecological problems. So, to avoid those things, we are going to study the topic conservation of resources, which is in our NCRT. So, the first question which can come in your paper regarding this topic is why there is a need to conserve resources, why we are even studying this topic that we should conserve resources. So the answer that you are going to write in your paper is right here, my friend. So you just need to watch this video. So let's get started. So the first point that you are going to write in your answer is resources are vital for any developmental activity. We all know this. It's very understood that resources are very important for any developmental activity. The second point is but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. We just studied it in our previous class that irrational consumption, or you can say that reckless use and overutilization of resources, may lead to socio-economic problems and environmental problems like ozone layer depletion or pollution, etc., etc. And the third point is to overcome these problems resource conservation at various levels is important. So अब हमें पता है कि रिसोर्सेज जो हैं हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बट उनकी इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो इसीलिए टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जो हमारी रिसोर्स कंजर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है एट वेरियस लेवल्स. Moving ahead, conservation of resources had been a major concern of the leaders and thinkers in the past. अब जो पास्ट में हमारे कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि रिसोर्सेज का रेकलेस यूज़ हो, ओवर यूटिलाइजेशन, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी. सो इसीलिए रिसोर्स कंजर्वेशन हैड बीन अ मेजर कंसर्न फॉर देम ऑल्सो. गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन and said that there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. He was against mass production and wanted to replace it with the production by masses. अब गांधी जी भी इन लीडर्स में इंक्लूडेड थे, तो गांधी जी ने भी कुछ लाइंस बोली. सो लेट्स हैव अ लुक एट देम. गांधी जी ने सबसे पहले बोला कि हमारी इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट टू सेटिस्फाई द नीड, नॉट फॉर द ग्रीड. फाइन, हमारे इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी नीड्स पूरा कर सकती है, सबकी ज़रूरतें पूरा कर सकती है, बट किसी भी एक इंसान की ग्रीड पूरा नहीं कर सकती. सो दिस लाइन कैन कम इन योर पेपर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाई गांधी जी सेड दैट देयर इज़ इनफ फॉर everybody's need and not for anybody's greed. So the answer that you are going to write, my friend, is that yes, you absolutely agree that there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. As अगर हम वो एक इंसान जो एक इंडिविजुअल है, वी ऑल नो दैट ग्रीड हैज़ नो एंड्स. Fine. So that one individual will use the resources recklessly, which will lead to many socio-economic and environmental problems like ozone layer depletion, etc. And therefore we should use these resources in a judicious and planned way to maintain a balance on earth. So next line is he was against mass production. गांधी जी जो थे, so ये पूरा आंसर था. अब नेक्स्ट लाइन आती है जिसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. सो द लाइन इज ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस. अब इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन मतलब गांधी जी जो थे वो नहीं चाहते थे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करो, कि आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करो. फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरत है 100 kg वीट की, लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं 150 kg ऑफ वीट, तो नहीं, आप इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन मत करो. बट ही वॉन्टेड टू रिप्लेस दिस मास प्रोडक्शन और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन विद प्रोडक्शन बाय मासेस. कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लोग काम करें तो ऐसा हो सकता है कि 5 लोग काम करें, 5 लोगों की भी ज़रूरत हो सकती है.
इसीलिए अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इसीलिए वो चाहते थे कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस मत करो बल्कि जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें लोग बढ़ाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. सो मूविंग अहेड टू लैंड रिसोर्सेज. सो प्लेन प्रोवाइड्स फैसिलिटी, एज वी ऑल नो कि हमारी इंडिया के पास बहुत सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स है लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लाट्यू. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट proportion of land comes under these relief features. फाइन. और ये रिलीफ फीचर्स का लाइक हमारे प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यूज का मेन फंक्शन क्या है, थोड़ा ब्रॉडली पढ़ते हैं, ब्रीफली हम इसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे. सो द प्लेन्स प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स appropriate relief feature. Then mountains क्या होते हैं? Mountains ensure पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स. इससे रिवर्स आती हैं माउंटेन से, हमारी पूरा ईयर्स ये रिवर्स फ्लो करती हैं. When mountains also provide facilities for tourism and ecological aspects, we all know this, it's very understood. So the third point is plateau region possesses rich reserves of minerals. हमारे plateaus के पास क्या होते हैं? बहुत ही rich reserves of minerals होते हैं, बहुत mineral rich area होता है हमारा plateau, and fossil fuels and forests too. So the 27% of land comes under plateaus and 43% of land comes under plains and 30% of land comes under mountains, as you all can see from this pie chart which I have included in this page. मूविंग अहेड टू लैंड यूटिलाइजेशन. अब हमारी हम लैंड रिसोर्सेज जो हैं हम उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं, जो हमारी लैंड है इतनी ज़्यादा वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है. सो लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस. फर्स्ट इज फॉरेस्ट. Then the second is land not available for cultivation. That is the land which is not being used for cultivation. The first is barren and wasteland. जो ऐसे ही wasteland पड़ी है जिसके ऊपर कोई भी एक भी पौधा नहीं है, एक भी आपका कुछ भी ग्रीनरी नहीं है उस लैंड पे, वेस्ट लैंड पड़ी है, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर रहे. इन द सेकेंड लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. फाइन. अब वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस क्या है? जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड्स, हमारी फ्लैट्स, प्लॉट्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, etc. So there are many uses. Then the third is other uncultivated land excluding fallow land. I'll just tell you in a bit that what is the meaning of fallow land. अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन मतलब हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड. देन थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या अनकल्टिवेटेड लैंड के यूजेस है, मतलब और क्या क्या अनकल्टिवेटेड लैंड में आता है. द फर्स्ट इज परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. मतलब जहाँ पे जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो अपनी काव को, अपने लाइफ स्टॉक को ग्रेज कराने लेकर जाते हैं. सो दैट इज़ ग्रेजिंग लैंड. देन बी इज़ लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया. आपको नेट जोन एरिया भी पता चलेगा बाद में क्या होता है. देन द सी इज़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड. अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है? इट इज़ द लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. Then moving ahead, I told you that I'll tell you what are fallow lands exactly. So fallow lands क्या होती है? These are the lands which are left for cultivation. ठीक है, which are left for cultivation and left without cultivation. अब आप बोलोगे कि मैं cultivation के लिए भी बोल रही हूँ और cultivation के बिना भी बोल रही हूँ. So अब हम क्या करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल सपोज हमारी एक लैंड है, अब हम उस पर क्रॉप्स ग्रो करे जा रहे हैं बट आफ्टर सम टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, दैट land will lose its fertility. So to regain the fertility of that land and to make it cultivable again, so we leave that land for some time. So अब क्या इसी को हम बोलते हैं fallow land. ठीक है. So a part in fallow land is करंट फेलो. अब करंट फेलो क्या होता है? इट इज़ द लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. एंड द बी इज़ अदर दैन करंट फेलो. उसको बोलते हैं हम लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. देन द नेट जोन एरिया, मैंने आपको बताया था नेट जोन एरिया भी क्या होता है, अभी हमें अभी पता चलेगा. सो व्हाट इज नेट जोन एरिया? एरिया सोन मोर दैन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट जोन एरिया इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस क्रॉप एरिया. अब नेट जोन एरिया हमारा क्या होता है? हमारी ऐसी लैंड, सपोज वी हैव ए लैंड एंड हमने इसके ऊपर क्या किया, इस लैंड के ऊपर 1 साल से ज़्यादा हम इसके अंदर हमारे क्रॉप्स ग्रो करे जा रहे हैं, मतलब वी आर यूजिंग दिस लैंड फॉर मोर दैन 1 ईयर. फाइन.
या फिर ये तो मैंने आपको बताया जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं था, बट द डेफिनेशन विच इज़ रिटन इन योर एनसीईआरटी इज एरिया सोन मोर देन वंस। मतलब हमारा एक एग्रीकल्चरल ईयर जो होता है, हमने उसके अंदर क्या किया, एक से ज़्यादा बार, मतलब एक एग्रीकल्चरल ईयर में क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही क्रॉप उगा सकते हैं, बट नहीं, नेट सोन एरिया ऐसा एरिया ऑफ लैंड है जिसके अंदर हम एक एग्रीकल्चरल ईयर के अंदर एक क्रॉप से ज़्यादा ग्रो करते हैं, एक क्रॉप से ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो उस लैंड को बोलते हैं नेट सोन एरिया। फाइन। एंड नेट सोन एरिया इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। So guys, that's all for today. If you haven't understood anything, then please comment down below. I'll try to resolve every query of yours. And if you liked this video and if you found it helpful, which I know you did, then please give it a big fat thumbs up. And guys, please don't forget to hit the bell icon to never miss any updates. And yeah, please subscribe my channel, guys. It's free. It's free of cost. It won't charge anything. Then until my next video, please stay tuned. Bye.